Hi everyone, welcome to the day 11 of the Python programming series. And previous class we had done selection statements in Python, how statements are being selected on the basis of conditions. ये सारी चीज़ों को हमने देखा था. आज हम उस पर कुछ practical concepts कोडिंग करेंगे जिसमें पूरा selection statements incorporated होगा. Okay, so first question we will be seeing on दो नंबर्स इनपुट लेकर वी विल ट्राई एंड सॉल्व कि इफ द फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन द सेकंड नंबर तो उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे और एल्स वाइस वर्सा. सो आवर टास्क इज टू चेक टू नंबर्स. सपोज एक नंबर 2 है और दूसरा नंबर 5 है. सो आवर टास्क इज टू चेक विच नंबर इज ग्रेटर. सो इस केस में 5 इज ग्रेटर. सो व्हाट वी विल हैव टू डू इज we will have to subtract 5 minus 2, that is 3. In the same case, suppose if I reverse this to this, say 5 इधर है और 2 इधर है, and if taking things into consideration, if this is variable A and this is variable B, so A was less than B, so we did B minus A, okay? And here we will take this as A and this is B. So इस case में 5 is greater than B, so we will be doing just the opposite, that is A minus B. Okay, so आंसर दोनों ही वे में एक आएगा. दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्टरी इजी कॉन्सेप्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स वर्क. सो इसमें होगा कुछ इस तरह कि यू विल टेक द नंबर वेरिएबल्स A and B as input and you will check if A is greater than B. That means this case. So you will have to subtract A minus B. So here you will write, say, is equal to A minus B. At the same time, say I give an else clause, else meaning if A is not greater than B, that means A is less than B. So in that case, we will do this part, that is B minus A. This was as simple as this. Now we will try and type this out. Simply दो नंबर्स को इनपुट लेना है, जैसे A इक्वल टू इंट में टाइप कास्ट करो इनपुट से एंटर अ नंबर 1, सेकेंड में B और यहाँ पर इनपुट पे एंटर करो एंटर अ नंबर 2. ओके, सो दीज टू विल सिंपली टेकिंग योर नंबर इनपुट्स. और अब यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे इफ A is greater than B. Okay, so what we have written over here, if say my first number is greater than the second number, if this condition is true, I will simply do A minus B. This concept is just to avoid नेगेटिव साइंस, और कुछ नहीं है. बस ये नेगेटिव साइंस किस तरह से अवॉइड करते हैं ये उस पर वर्क कर रहा है. और यहाँ पर एल्स आई विल राइट, अगर ऐसा नहीं है तो सिंपली सब में कर देंगे B माइनस A. अच्छा, यहाँ पर एक प्रॉब्लम होगा, वो है इंडेंटेशन का. सो दिस इज द इंडेंटेशन. ठीक है, और जो भी दोनों को सब्ट्रैक्ट करके रिजल्ट आएगा, आई विल राइट इट एज print the result is इस तरह से. ओके, एंड ओके आई हैव टेकन द वेरिएबल एज sub. ठीक है, नाउ लेट्स कंपाइल दिस. I was thinking I have made some mistake है यहाँ पे. Okay, there's a comma missing. Okay, so enter a number. से अभी simply 2 और 5 के एग्जाम्पल से देखते हैं और दोनों का सब्ट्रैक्ट करने पे ये रिजल्ट आए. ओके, ये देखकर लगता होगा 12 और ये, बट दिस इज नॉट द केस. लेट्स री एग्जीक्यूट इट. say 2 and second number is say 5.
So the result is 5 minus 2, that is 3. Now let's change this. Let me take this as 5 and this as 2. Then also the result is 3. In that case, this part is executing where A is greater than B. I'm sorry, this part is executing A is greater than B. और पहले वाले केस में जब 3 आया था तो वो नेगेटिव साइन अवॉइड करने के लिए B माइनस ए किया था. That means 5 minus 2 again. Okay, so इसमें और कुछ नहीं था. This was a very simple code. इसके बाद we will see another question which is also very simple. We will be checking whether a number entered is a negative number, a positive number or 0. तो इसमें कुछ भी नहीं है. You have to check whether the number is greater than 0, less than 0 or equal to 0. Okay, so ये तीन कंडीशन ये बेसिकली मोर देन 2 कंडीशंस जिस ब्लॉक में जाता है. You have to just get मतलब hands on experience और you have to just have an hands on knowledge on it. तो ये if elif और else ब्लॉक में जाता है. elif in Python and else if in Java. Okay, so this is very simple. So let's work it out. So यहाँ पर आपको एक ही नंबर इनपुट लेना है. Say I take the variable n as input and I hope you know why am I typecasting this into integer, क्योंकि by default ये जो है string values लेता है. Okay, अब इसके बाद चेक करो whether this n is greater than 0. If it is, print कर दो number entered is positive. अगर ये नहीं है तो चेक करो कि क्या मेरा वो नंबर एलिफ में से आई गिव आप इक्वल टू कभी कैसे दे सकते हो, लेस देन 0 कभी. सो इट्स टोटली अप टू यू. तो प्रिंट करके यहाँ पे बता दो नंबर एंटर्ड इज नेगेटिव. और अगर से दोनों में से कोई भी नहीं एग्जीक्यूट करता है तो सिंपली एल्स. अगर पॉजिटिव भी नहीं है और नेगेटिव भी नहीं है सो नंबर एंटर्ड इज अ 0. ठीक है, अब इसको रन करते हैं. कुछ भी नंबर दे दो, से 5, तो कुछ नहीं है, नंबर पॉजिटिव नंबर है. सिंपल. अब कोई भी नेगेटिव पे देख लो, -9, नंबर एंटर्ड इज नेगेटिव. और ऑब्वियसली 0 दोगे तो नंबर 0 बोलेगा. ठीक है. नाउ दीज क्वेश्चंस वर वेरी बेसिक. द पॉइंट इज व्हाई डिड आई टेल यू दैट. तो ये बस इसलिए करा रहे थे कि आपको पता चले कि कहाँ पर क्या इस्तेमाल करना है. वैसे ही देखो यहाँ पर एक और क्वेश्चन है जो कि दिखा रहा है चेक करके कि इनपुट कलर आपने क्या किया है. सो सी, यहाँ पर डायरेक्टली दे हैव यूज्ड द इनपुट फंक्शन और ये सब में दे हैव यूज्ड इनपुट के साथ इंट. सो हियर दे हैव टाइप कास्टेड इनटू इंट डेटा टाइप. यही है पाइथन का प्रॉपर्टी थी. वो बाय डिफॉल्ट एक स्ट्रिंग लेता है, उसको एक्सप्लिसिटली इंटीजर में टाइप कास्ट करना पड़ता है. हेंस यहाँ पर वो नहीं किया है. तो सिग्नल देखना चाह रहा है वो रेड है, इन स्मॉल में देखो या कैप्स में देखो. तो पाइथन इज ऑल्सो केस सेंसिटिव, तो वो कैपिटल और स्मॉल में डिफ्रेंशिएट करता है. तो अगर रेड है सिग्नल तो स्टॉप. अगर रेड नहीं है तो लेट्स से आप देखो कि अगर वो ऑरेंज है तो दिस एक्चुअली वो ऑरेंज नहीं येलो पे होता है. सो हियर देयर इज अ टाइपो. तो येलो होना चाहिए था. अगर येलो है तो इट्स अ वार्निंग टू बी स्लो, और अगर ग्रीन है तो यू आर गुड टू गो. ठीक है, तो ये एलिफ है. अच्छा, अब यहाँ पे आप देख रहे होगे यहाँ पे इफ दिया है, एलिफ दिया है, फिर से एलिफ दिया है विदाउट एल्स. नाउ लेट्स ट्राई दिस आउट कि बिना एल्स का इफ एलिफ चलता है या नहीं, क्योंकि जावा में इफ यू नो इट डजंट वर्क आउट. सो लेट्स क्विकली इनिशियलाइज अ वेरिएबल. यूजर से इनपुट ले लो, एंटर अ सिग्नल. ओके, उसके बाद आप चेक करो इफ सिग्नल इक्वल्स रेड. सिग्नल आपका कैप्स में रेड है या नहीं. दैट मीन्स अगर कैपिटल में आप इनपुट किए हो तो भी वो चल जाए. तो यहाँ पर आप बोल दो स्टॉप सिंपली. ठीक है,
अब चेक करो कि क्या आपका सिग्नल येलो है या फिर नाउ दिस इज एन और ऑपरेटर कि इधर ऑफ दिस शुड हैव टू बी ट्रू। तो वो देखने के लिए आप यहाँ पर कैपिटल में देख लो, तो इधर पर भी बोल दो। इसमें है से पॉज या स्लो, नहीं, येलो इज फॉर स्लो कि जस्ट स्लो डाउन। और अगर आपका वो ग्रीन है तो लेट्स से आई एम गिविंग अ कंडीशन। अगर आप पहले गेस करके मुझे बता सकते हो कि बिना एल्स का ये चलेगा या नहीं, देन लेट मी नो, अदरवाइज वी विल बी सीइंग वैसे भी कि ये बिना एल्स का चलेगा या नहीं। लेट मी सी कि कितने अपने कंसेप्ट्स को सीखा है। Although I know the answer, but I want you to test it out. Print, go. Okay. Now we will execute this without an else statement. Okay. I have missed out something. Now this is good to go with the correct output. Okay. So enter a signal, say I give green. So my output is go. At the same time, I give as say yellow. My output is slow down. And if I give red, obviously it is stop. Caps में भी आप दे सकते हो anything, so it's stop. तो basically what we have learned just now कि आप unlike Java बिना else के भी if elif blocks को लिख सकते हैं without an else condition. और you could have simply made this as else कि अगर, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम होता, कलर्स तो बहुत सारे हैं ना जो एग्जिस्ट करते हैं, बट ट्रैफिक लाइट्स में वी यूज ओनली 2-3 कलर्स, रेड येलो ग्रीन, ये सारी चीजें। तो अगर आप नहीं मेंशन करोगे से यहाँ रेड यहाँ येलो दोगे, लेट्स से अगर यूजर ने ऑरेंज वगैरह भी किया तो वो गो बोलेगा, विच इज अ रॉन्ग कन्वेंशन, isn't it? So in that case we have skipped out the else part here. Okay, so now this is a very simple calculation जहाँ पर आप एक कैलकुलेटर बना रहे हो और देख रहे हो कि इनपुट वैल्यू आपका ऑपरेंड क्या है, जो भी ऑपरेंड है उस पर वही ऑपरेशन परफॉर्म करना है। बिफोर कॉलिंग इट अ डे एक छोटा सा क्वेश्चन और देख लेते हैं जहाँ पर वी विल बी मेकिंग अ कैलकुलेटर। ओके, तो आप यहाँ पर एक चीज इनपुट लोगे, वो है ऑपरेंड, और ऑपरेंड आपको इंट में लेने की जरूरत नहीं है, आप उसको सिंपल स्ट्रिंग में लो। सो यहाँ पर एक किस पर ऑपरेट करवाना है ये भी लेना है डेफिनेटली। सो से आई टेक अ वेरिएबल एज val1, उसको इंट में टाइप कास्ट करेंगे, एंटर अ नंबर, सिमिलरली val2 उसको भी वही लिखेंगे। तो दो नंबर्स इनपुट ले रहे हैं, ऑब्वियसली किसी चीज पर इवेलुएट करवाना है, और यहाँ पर एक ऑपरेटर मांगेंगे, एंटर एन ऑपरेटर, ब्रैकेट्स में बता देंगे कि वो क्या क्या दे सकता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ठीक है, अब उसके बाद चेक करेंगे कि वो ऑपरेटर जो यूजर ने दिया है वो क्या है। लेट्स से अगर वो ऑपरेटर जो यूजर ने दिया है वो प्लस है, तो सिंपली सम कर दोगे आप val1 एंड val2 है, सो val1 प्लस val2। अब अगर से आपका कंडीशन में ऑपरेटर जो है वो माइनस है, अगर ऑपरेटर जो है आपका माइनस है, आई होप ये 4 ऑपरेशन ही दिए थे उन्होंने, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ओके, अगर नाम इसका थोड़ा सा जेन्युइन रख लेते हैं, इसको रिजल्ट वगैरह कर लेते हैं, रेस्ट रख लेते हैं। ठीक है, अगर ऑपरेटर माइनस है तो वो जो मेरा रिजल्ट होगा वो हो जाएगा से val1 माइनस val2। ओके, वी आर जस्ट स्किपिंग द पार्ट कि ये नेगेटिव देगा या पॉजिटिव देगा, उसको भी हम लोग देख सकते हैं, बट इसको भी पहले सिंपल रखते हैं। अगर ऑपरेटर मेरा मल्टीप्लाई है तो सिंपली
आप दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दोगे, val1 टाइम्स val2। और अगर मेरा ऑपरेटर डिवीजन का है, ओके, डिवाइड है, तो सिंपली दोनों नंबर्स को डिवाइड कर देंगे। रेस्ट इज इक्वल टू val1 डिवाइडेड बाय val2। ठीक है, यहाँ पर एक कोलन होगा एंड ओके फाइन। नाउ लेट्स ट्राई एंड एग्जीक्यूट, और जैसे जो प्रॉब्लम आएगा उसके बाद हम लोग उसको देखेंगे। एंटर नंबर से 25 एंड 35, ऑपरेटर प्लस देते हैं। ओके मैंने प्रिंट नहीं किया है, दिस इज अ थिंग, वो कैलकुलेट कर रहा है लेकिन वो प्रिंट नहीं कर रहा है। The output is comma result. Let's re-execute it. Say 26, 35, ऑपरेटर से प्लस, तो वो दोनों का सम दे दिया। 6 and 5 11, 3 to 5 and 1 6। ठीक है, तो ये सम दे रहा है। अब उसी तरह से कुछ छोटे नंबर्स पर जैसे सब्ट्रैक्ट वगैरह कर लेते हैं, तो नेगेटिव में देगा क्योंकि मैंने कोई पॉजिटिव के लिए एबीएस नहीं लगाया। अब लेट्स से अगर हम मुझे यहाँ पर रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव में ही चाहिए, तो यहाँ पर एक फंक्शन होता है एबीएस का। लेट्स एग्जीक्यूट दिस। अभी के लिए वही देते हैं आउटपुट 2 3 एंड माइनस करना है, तो रिजल्ट 1 दिया है। ठीक है, सो ये एबीएस फंक्शन जो है ना, ये एब्सोल्यूट वैल्यू देता है, अगर भी नेगेटिव आएगा उसको पॉजिटिव कर देगा इररिस्पेक्टिव ऑफ कि क्या आ रहा है रिजल्ट। तो ये पिछले वाले क्वेश्चन में भी जो हमने इधर पे जो देखा था, नंबर आपका ग्रेटर देन फर्स्ट है और सेकंड है, तब फिर ऐसे वैसे करो। तो इसको आप सिंपली क्या कर सकते हो, एक एबीएस लगाकर उसको सिंपल एक लाइन पे यू कैन मेक इट आउट कि आंसर तो वही आएगा, आई जस्ट रिमूव द नेगेटिव साइन विद दैट एबीएस फंक्शन। ओके, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई, तो इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है, जितना जिससे करोगे तो वो मल्टीप्लाई ही करेगा। ओके, एंड हाँ डिवाइड में एक होगा कि अगर आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है या बड़ा है उसके लिए। तो अभी के लिए आई एम कीपिंग इट सिंपल, जैसे 6 और 3 दिया है, सो आई शुड गेट द आउटपुट एज 2। ठीक है, तो 2.0 क्योंकि ये फ्लोट पे है। अब लेट्स से आपको इसका आंसर हमको इंटीजर पर ही चाहिए, तो इंटीजर पे चाहने के लिए व्हाट यू विल हैव टू डू इज, यहाँ पर इसको प्रिंट में लिख दो, तो ये वैल्यू जो भी आएगा ना इसको टाइप कास्ट कर देगा। तो अब इसको अगेन रन करो, से 6 and 3, oh I just skipped the input, wait there, oh वहां पे 3 लिखा गया था, तो यहाँ पे इसको 6 और 3 कर दो। ठीक है, और डिवीजन ऑपरेंड दे दो, तो आउटपुट जो भी है सी वो इंटीजर पे टाइप कास्ट हो गया। अब लेट्स से ये तो नॉर्मल सिनेरियो था जहाँ पे पॉइंट्स नहीं आई मीन हाँ नहीं आता, वो 0.0 दे रहा था, तो इट नीड नो पॉइंट ऑफ डिफरेंस मच, सो वी विल कीप समथिंग एज से 5 और 9। जब इसको डिवाइड करेंगे तो नेगेटिव में ऑब्वियसली आएगा, देन सी व्हाट इट हैपेंस। सी आउटपुट को क्या कर दिया 0, वेर एज अगर हम 5 को 9 से डिवाइड करते हैं, सो आई गेट an output something like 5 को अगर हम से 9 से डिवाइड करते हैं तो आई गेट माई आउटपुट एज 0.5555 एंड देन दैट्स अ रिकरिंग डिजिट। तो अगर वही हम यहाँ पर से इंटीजर को हटा देते हैं, देन जो मेरा रिजल्ट आ रहा था वो वैसे ही आएगा। ठीक है, सो दीज आर ऑल डिफरेंट थिंग्स जो आप ट्राई आउट करके देख सकते हो कि किस तरह से क्या आउटपुट पे अफेक्ट करता है। सो आई जस्ट मेक इट एज अगेन 5 and 9 and I get the output as what I am getting in my TLC. Okay, so I just wanted to keep it short and make things understand कि this is how if-else works। आज मैंने बहुत ही बेसिक्स क्वेश्चन किया है इससे, बट धीरे धीरे we will try and elevate this, और इससे और भी बड़ा बड़ा और काफ़ी important questions को करेंगे and we will see more things in much more larger prospect पे। Okay, so this is my channel. This is the playlist for Java and Python which is being simultaneously going on.
I am also trying and uploading few shorts on various topics. अभी मैंने Java से शुरू किया है. Then I'll be also be covering other topics on Python and other subjects as well. So please be a part of it. Share it with your friends. Like, share, and subscribe. This is all for today. Thank you.